Welcome back to my channel, guys. This video is based on the Indian Prime Minister Modi ji recently visited in Trinidad and Tobago. This is a island nation. The PM visited on 3 to 4 July. So let's discuss about the visit. So in this world map, you see here is India, and the island nation where the PM visited is here in Atlantic Ocean. This is the North America continent, and this is the South America continent, and this is the island nation. This is Trinidad and this is Tobago. Okay, guys, this is Trinidad and this is a small part of the island nation. This is the island nation. So this is island and this is also island. This is Trinidad and this is Tobago. So this is part of the mainly South American continent, but some suggested that this is a part of the Caribbean. So Caribbean is here, and the island nation Trinidad and Tobago is 11 kilometers from the Venezuela. Venezuela is here in South America, and Venezuela there is 11 kilometer distance, and यहाँ से 11 किलोमीटर पर ये island nation है. और ये island nation जो है basically the South American continent, that is Venezuela से disconnected है by this gulf, and this gulf is known as Gulf of Paria. This is Gulf of Paria is the name of this gulf here, and Gulf of Paria. This is the Gulf of Paria. You see this, guys? This is Gulf of Paria. And this island nation basically lies south of the Lesser Antilles. This is the Caribbean Sea. This is a part of the Caribbean Sea, and this is exactly south of the Caribbean Sea, and also the Antilles. This is the Lesser Antilles, and this is the Greater Antilles, and this is the Lesser Antilles. So this is the part of, also someone says that it's a part of Lesser Antilles, and this is totally south of the Antilles nations. Actually ये जो पूरा एरिया है ये आइलैंड नेशंस का, ये जो है ये पूरी तरह से टूरिज्म पर बेस्ड है गाइस. बट दिस आइलैंड नेशन इन द साउथ अरब कैरेबियन सी इस ये बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ पर ऑयल और गैस के रिजर्व्स मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा, और ये एक एनर्जी सोर्स रिच कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है, जिससे भारत जो है अपनी एनर्जी नीड्स जो है वो पूरी कर सकता है, और अपनी जो है एनर्जी नीड्स इन द साउथ अमेरिका कंटिनेंट भी बढ़ा सकता है, और साउथ अमेरिका कंटिनेंट और ये जो कैरेबियन जो आइलैंड नेशंस है उसके साथ भी अच्छे संपर्क रख सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस आइलैंड नेशन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. एंड वंस और एक चीज़ बहुत ही खास बात है यहाँ पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भारतीय बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट बेसिकली यहाँ का जो भी पॉपुलेशन है 100%, उसका लगभग 40 to 45% जो हैं वो भारतीय हैं, और मेनली वो यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं गाइस. सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर गए थे, और उन्होंने वहाँ की प्राइम मिनिस्टर दैट इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर को भारत की बेटी भी कहा था. यू ऑलरेडी हियर्ड अबाउट दैट. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का जो पॉलिटिकल जो एसेडेंस है, जैसे पॉलिटिकल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है. सो ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है. प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर लैंड किए थे, दैट इज ये आप देख सकते हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, इसको पोर्ट ऑफ स्पेन बोलते हैं. एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि दोनों आइलैंड नेशंस पर जो है वो पहले जो है वेस्टर्न नेशंस का कब्जा था, मेनली स्पेन का कब्जा था, और फिर डच का, फ्रेंच का, और उसके बाद फिर ब्रिटिश का कब्जा हो गया. सो लेट्स नो अबाउट बेटर द टू आइलैंड नेशंस Trinidad and Tobago with help of more information and figures. So let's talk about this nation in a more sophisticated way. You see this, guys? This is the national flag of Trinidad and Tobago, and this is Trinidad and Tobago island nations. This is Trinidad and this is Tobago, and here is the prime minister landed here. The port of Spain is here. This is the exactly on the Gulf of Paria, and the Gulf of Paria is actually, this creates a separation between the mainland of South America continent and the Trinidad island country. So
Basically, both Trinidad and Tobago were inhabited by इंडिजिनियस पॉपुलेशंस। यहाँ जो इंडिजिनियस पॉपुलेशंस रहते थे उनका नाम था, वो किस जाति के थे और उनका जो समाज था वो बेसिकली उनको कहा जाता था कैरिब्स एंड अरावाक्स। कैरिब्स एंड अरावाक्स कहा जाता था। ये स्पेनिश कॉलोनी बन गया था 16th सेंचुरी में। एक्चुअली क्या था कि 13, 14 या 15 सेंचुरी में वेस्टर्न नेशंस में रिनेशंस मतलब कि एक नई आइडिया का जन्म हुआ था, टू ट्रेवल थ्रू द सी एंड फाइंड अ न्यू नेशन, दैट इज अ न्यू वर्ल्ड। तो वो वहां से ट्रेवल करते थे और ट्रेवल करके जो है कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे। तो ऐसे ट्रेवल करके वो इस आइलैंड नेशन पर पहुंच गए होंगे इन द 16th सेंचुरी। तो स्पेनिश लोग जहां जाते थे वहां वो अपनी कॉलोनी बना देते थे। तो स्पेनिश कॉलोनी था पहले ये, आप ये देख सकते हो ट्रिनिडाड को। टोबैगो जो है उसकी एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, वहां भी यूरोपियन पावर्स का कब्जा रहा था, फ्रेंच, डच और स्पेनिश का कब्जा इन टोबैगो इस नेशन पर रहा था। उसके बाद ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया 1797 में। और उसके बाद जो है ब्रिटिश के कंट्रोल में आने के बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि इस दोनों नेशंस पर कंट्रोल कर लिया और इन दोनों नेशन को एक साथ वो एडमिनिस्टर करने लगे, डेट इज गवर्न करने लगे। उसके बाद देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों आइलैंड नेशन का, दोनों आइलैंड्स का, वो एक साथ ब्रिटिश गवर्न कर रहे थे। सो वहीं से ये दोनों आइलैंड जो है एक नेशन की तरह जो है एक्ट करने लगे थे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गेन फुल इंडिपेंडेंस यूनाइटेड किंगडम से, लगभग ब्रिटिश से इनको पूरी आजादी 1962 में मिली थी। और 1976 में द नेशन अडॉप्टेड अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आप देख सकते हैं कि लगभग 10 साल से भी ज्यादा लग गए इस आइलैंड नेशन को अपनी एक संविधान बनाने में। और उसके बाद जाकर इन्होंने अपना प्रेसिडेंट जो है रिप्लेस किया द ब्रिटिश मोनार्च को विद द प्रेसिडेंट। कैपिटल सिटी जो है इनका उसको पोर्ट ऑफ स्पेन बोलते हैं। एक्चुअली स्पेन का कब्जा था पहले, तो उसी के नाम से इस पोर्ट सिटी को जो है एक्चुअली डिफाइन किया गया है, पोर्ट ऑफ स्पेन। एक बहुत ही अच्छा एक सिटी है, ये पूरी पोर्ट पर बेस्ड है गल्फ ऑफ पेरिया में। तो पोर्ट सिटी इनका जो, और ये कैपिटल सिटी भी है। तो इस आइलैंड नेशन का कैपिटल सिटी का नाम ही है पोर्ट ऑफ स्पेन। विलेज लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस म्युनिसिपैलिटी इज चागुआनस। चागुआनस देख सकते हैं आप, गाइस यहाँ पे है, दिस इज चागुआनस। तो ये जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है इज लोकेटेड एक्चुअली 11 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला। मैंने आपको बताया भी था ये वेनेजुएला है और यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप यहाँ से आप पानी में अगर आप ट्रेवल करते हो तो ये लगभग पानी से बोट से लगभग 11 किलोमीटर है और यहाँ पर आप पहुंच जाओगे ट्रिनिडाड। Unlike most Caribbean nations territories जो tourism पर बेस्ड है, इकोनॉमी ऑफ दिस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नेशन इज प्योरली इंडस्ट्रियल है, बेस्ड ऑन लार्ज रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस। यहाँ पर एनर्जी के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, ऑयल और गैस की रिजर्व्स हैं यहाँ पर। और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में और भी जान लीजिए कि अफ्रीकन एंड इंडियन कैरेबियन कल्चर्स का एक हिस्सा रहा है हमेशा से। यहाँ पहले क्या था कि अफ्रीका के जो लोग थे उनको जो है स्लेव्स के रूप में ट्रीट किया जाता था, उनको वहां से लाया जाता था। ब्रिटिश जो है जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनी थी वहां से वो स्लेव्स को उठाकर यहाँ लाते थे पर काम करवाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां जो है अफ्रीकन लोग आ गए और उसके बाद इंडिया के कुछ लोग भी आ गए थ्रू शिप्स के जरिए। तो वहाँ इंडिया के भी लोग यहाँ पे आके यहाँ बस गए थे। The island that makes up modern day Trinidad and Tobago lie in the southern end of the Lesser Antilles group। मैंने आपको बताया भी था कि Lesser Antilles group के southern end में है ये। The island lie close to the continent of South America, separated by the Gulf of Paria। तो this is the Gulf of Paria और ये Gulf of Paria जो है इस island nation को South American continent से separate करता है। तो याद रखिएगा, this is the important GK general knowledge। Okay। एंड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट, देख सकते हैं यहाँ पर ये मोदी जी हैं यहाँ पर और ये वहाँ की जो पीएम है उनके साथ हैं। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर उनको जो है वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और थोड़ा ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो कितना एक खूबसूरत और एक डिजिग्नेटेड एक रेपुटेटेड इन्वायरमेंट है, कितना इज्जत दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर को। खुद वहाँ की प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पर खड़ी हैं। एंड
आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है अराइव्ड इन पोर्ट ऑफ स्पेन ऑन स्टेट विजिट टू रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। दिस इज रिपब्लिक 1976 में बना था। दिस द फर्स्ट बायलैटरल विजिट है बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू टीएनटी सिंस 1999। तो समझिए कि 1999 में हमारा जो है इनसे कनेक्शन हुआ था और उसके बाद जाके लगभग 2 सेंचुरी से भी ज्यादा का समय हो गया है, तब जाकर के को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर पहुंचा है बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बातचीत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए द रिलेशंस। इन द पोर्ट ऑफ स्पेन द प्राइम मिनिस्टर वाज रिसीव्ड मिसेस कमला प्रसाद विशेषर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो along with the members of her cabinet and several dignitaries। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के मंत्री के साथ यहाँ पहुंची थी, बहुत सारे डिग्निटरीज भी उनके साथ अवेलेबल थे और वो खुद वहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए आए, उनका स्वागत करने के लिए आए। तो प्राइम मिनिस्टर को वहां पर जो है अकॉर्डेड सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर वेलकम विद स्पेशल कल्चरल परफॉर्मेंसेस। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज द कल्चर, सम टाइप ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द टीएनटी प्राइम मिनिस्टर मिसेस कमला प्रसाद विशेषर। ऑन हिज अराइवल एट द होटल, प्राइम मिनिस्टर होटल में भी पहुंचे थे और वहां पर भी उनको जो है वेलकम किया गया बाय द इंडियन डायस्पोरा। ड्यूरिंग द विजिट पीएम मोदी होल्ड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट क्रिस्टीन करला कंगलो, माना जाता है कि ये भी भारतीय ही हैं, एंड द प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विशेषर, ये भी भारतीय ही हैं। दोनों को माना जाता है कि दोनों भारतीय ही हैं। डिस्कस फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर द फर्दर रिलेशंस ऑफ the India and TNT. So Prime Minister Narendra Modi presents a replica of the Ram Mandir in Ayodhya and the holy water from the Saryu River as well as from the Mahakumbh held in Prayagraj to Trinidad and Tobago। Prime Minister कमला प्रसाद विशेषर। तो आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो TNT के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और वो सम गिफ्ट्स भी दे रहे हैं और जो सरयू नदी का जो पानी है जो महाकुंभ से भी उन्होंने लेके आए, प्रयागराज में जो हेल्ड हुआ था वहां से भी लेके आया और वो जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर को ये देते हुए आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट। प्राइम मिनिस्टर अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, नॉट थ्रू इन इंडिया बट थ्रू द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर वेयर द प्राइम मिनिस्टर गोज एंड show some natural and indigenous behaviors with the international community. Okay guys, the Prime Minister said that he is very happy to witness भोजपुरी चौथल परफॉर्मेंस। वहां पर जब वो गए थे तो वहां पर जो एयरपोर्ट पर उनको जो है भोजपुरी चौथल का परफॉर्मेंस वहां पर दिया गया था। भोजपुरी लोगों ने परफॉर्म किया था ऑन द पोर्ट ऑफ स्पेन पर। द कनेक्ट बिटवीन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड इंडिया, स्पेशली पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी के लोग रहते थे और बिहार के ही लोग रहते थे। ज्यादातर ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग वहां पर रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। पीएम मोदी ऑल्सो प्राइजिंग इंडियन स्पेस प्रोग्राम को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां रखा और पीएम मोदी ने हाईलाइट किया कि द चंद्रयान 3 प्रोब लैंडिंग ऑन साइट ऑन द साउथर्न पोल ऑफ द मून ऑन द मून, एंड उस पॉइंट को पीएम मिनिस्टर मोदी वहां पर जो है वो TNT में वहां पर वो संबोधित करते हैं और कहते हैं कि उस पॉइंट को सिर्फ शक्ति पॉइंट। तो आप देख सकते हैं गाइस कि इंडिया अपनी बात को कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में इन प्योरली डिजिग्नेटेड वे में एंड कॉन्फिडेंस वे में रख रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया टू मूव फॉरवर्ड एंड टू कीप इंडिया इन अ फॉरवर्ड प्लेस। सो देख सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है अबाउट द ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड बायलैटरल रिलेशंस क्या है वो भी हम देखेंगे गाइस। आप देखिए द पार्टनरशिप बिल्ड ऑन हिस्टोरिकल कनेक्शंस के बीच में पार्टनरशिप बना हुआ है। हिस्टोरिकल कनेक्शंस पहले से ही डेटिंग बैक 2 सेंचुरीज को पता है कि 1910 में बना था, उसके बाद 2 सेंचुरीज बीत गए, तो 2 सेंचुरीज पहले लंबा जो है ये रिलेशनशिप रहा है। और अब जो है ये कोऑपरेशन जो है वो ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स और कल्चरल एक्सचेंज तक पहुंच चुका है। अनलाइक मेनी अदर कैरेबियन नेशंस वेयर इंडियन कम्युनिटीज रिमेन माइनॉरिटीज, जो कैरेबियन नेशंस हैं वहां पर इंडियन कम्युनिटीज माइनॉरिटी के रूप में है, बट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इंडियन पॉपुलेशन जो है लगभग 40 to 45% हैज अचीव्ड रिमार्केबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर। इंडियन डायस्पोरा जो है वहां के
पॉपुलेशन का लगभग 40 to 45% है। और वो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज ए पॉपुलेशन एज ए वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, वो वहाँ की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा पावरफुल है। द प्रेजेंस ऑफ 2 इंडियन ओरिजिन वुमेन, यहाँ पर देख सकते हैं आपके इंडियन ओरिजिन वुमेन ही है, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टिन करला कंगलू एंड द प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं कमला प्रसाद विशेषर एट द helm of nation governance structure simplifies this community's political ascendancy, that is the political power। कैसे है कि बिहार या भारत के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल पावर जो आप देख सकते हैं, और जो पॉलिटिकल पावर के साथ साथ वुमेन्स पावर, वुमेन्स एम्पावरमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर TNT अपने है जैसे वेरी ग्रोथफुल एंड डेवलप्ड नेशन। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ज्योग्राफिकल पोजीशन एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल भी आप ले लीजिए कि ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, तो ये साउथ में है पूरी तरह से, और ये अमेरिका साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का भी हिस्सा है और द कैरेबियन सी का जो आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं उसका भी हिस्सा रहा है। तो एक तरह से ये एक अमेरिका से कनेक्ट होने का और अपनी वाइल और एनर्जी के जो सोर्स हैं उसको पूरा करने का, जो स्कार्सिटी भारत में रहती है उसको पूरा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। द नेशन स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट द साउथर्न टिप ऑफ द कैरिबियन आर्चिपेलागो, मैंने अभी आपको बताया, कपल विद इट्स स्टेटस एज वन ऑफ द रीजन्स का जो वेल्थिएस्ट इकोनॉमी है ड्यू टू इट्स एनर्जी रिसोर्सेज। याद रखिएगा जो कैरिबियन नेशंस है उसके साउथ में है और इनके पास एनर्जी की रिसोर्स बहुत ज्यादा है। सो इस वजह से क्या है कि एक वेल्थिएस्ट रीजन्स में है among the Caribbean archipelago। पोजीशन इज एज अ नेचुरल हब फॉर इंडिया एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन द अमेरिकास। ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट करता है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, तो अपेरेंटली आप याद रखिएगा कि व्हीकल्स, आयरन, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट क्या करता है, तो अभी से बात है कि एनर्जी का सोर्स है वहां पर, तो मिनरल फ्यूल्स और पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। द नेशन पोजीशन एज ए सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ से इंपोर्ट करते होंगे और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अलाइन बिटवीन डाइवर्सिफाइंग स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी इंपोर्ट्स, तो एनर्जी इंपोर्ट्स का जो भारत की जो डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी रही है उसके हिसाब से दिस कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। The preservation of Indian culture with Trinidad and Tobago Indian diaspora community provides India unparalleled soft power advantage। ऑब्वियसली बात है कि इंडियन कल्चर जो है वहाँ प्रिजर्वेशन है, वहाँ पर इनकी आजादी दी गई है कि आप अपने कल्चर को संजो के रख सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए कि कितना एक लिबरल और एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो इंडिया का एक तरह से वहाँ की जो लोग हैं वो भारतीय, उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, तो इंडिया एक यहाँ पर अनपैरेलल्ड सॉफ्ट पावर एडवांटेज पोजीशन में है इन द कैरेबियन। फेस्टिवल यहाँ पर दिवाली, होली, दशहरा सब मनाए जाते हैं स्टेट रिकॉग्निशन के साथ, जबकि लैंग्वेज भोजपुरी जो है वहाँ पर अभी तक बोली जाती है और जनरेशन से बोली जाती रही है। प्राइम मिनिस्टर विजिट culminating in his address to a joint sitting of ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, कहा जा रहा है कि वो एड्रेस भी करेंगे पार्लियामेंट को, और उनको जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो सिग्नल्स अ न्यू चैप्टर फॉर बायलैटरल रिलेशंस। ओके गाइस, एंड फॉर इंडिया ट्रिनिडाद एंड टोबैगो रिप्रेजेंट्स मोर देन अ बायलैटरल रिलेशनशिप, एम्बॉडीज द पॉलिटिकल पोटेंशियल फॉर डिस्पोरा ड्रिवन पॉलिसी। ऑब्वियसली बात है कि जिस डिस्पोरा का सॉफ्ट पावर हो, जिस डिस्पोरा का 40 to 45% पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड हो, तो वहां पर डिस्पोरा ड्रिवन पॉलिसी डिप्लोमेसी चलेगी। साउथ साउथ कोऑपरेशन, भारत का जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का जो हिस्सा है वो हमेशा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो रहेगा। एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस इन द अमेरिकाज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है अमेरिका में अपना स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन करना चाहता है, तो दिस कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो आप देख सकते हैं इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर इन द फोटो with the medal of Republic of Trinidad and Tobago। आप मेडल जो उनको दिया गया था, हाईएस्ट ऑनर, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो अवार्ड दिया गया था वो ये है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये पूरी तरह से आप जो है इस बारे में जो है चर्चा हो चुकी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द विजिट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द PM visit in Argentina। So if you like this video, share this video with your friends and subscribe this channel so much. Thank you so much guys, thank you so much।